Hi friends, welcome to session 8E of Accounts Hub. Now in session this 8 series, whatever we are doing, A, B, C, D, we have seen trial balance, थ्योरी पढ़ा, फिर उसका प्रैक्टिकल किया, फिर थ्योरी किया, फिर उसका प्रैक्टिकल किया, एक प्रैक्टिकल और करके देखते हैं हम इस सेशन 8E के अंदर. Let's suppose we are given these 17 balances which have been extracted from the ledger account of any business. So these 17 accounts are there, 17 balances are there, जो अलग अलग अकाउंट्स हो सकता है ज़्यादा भी हों, जिसको हमने क्लब कर दिया है, जो कि सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स में क्लब होकर आ गए. वो सारे जितने भी पर्सनल बैलेंसेस थे लेजर अकाउंट्स के अंदर, उनको सबको कंबाइन करके हमने डेबिट बैलेंसेस को सन्ड्री डेटर बना दिया और क्रेडिट बैलेंस को सन्ड्री क्रेडिटर बना दिया है. सो लेजर अकाउंट्स तो ज़्यादा हैं, बट समरी ऑफ दीज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस विच इज़ देयर इज 17 बैलेंसेस विच वी हैव. अब इसका हमने ट्रायल बनाना है, एज वी हैड सीन इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो. 8D में भी ऐसे हमने बनाया था. सिमिलर टू दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रायल. तो एक एक करके एक एक बैलेंस लेते हैं एंड लेट्स सी वेदर इट कुड अपीयर ऑन द डेबिट साइड और द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल. ट्रायल बैलेंस आपको ऑलरेडी पता है. दिस हैज दीज 5 कॉलम्स व्हिच आर देयर: सीरियल नंबर, particulars or heads of account, whatever, ledger folio, debit side and credit side. That means debit amount and credit amount. These are the columns which are there in a trial balance. Okay. So now, first and foremost, sundry debtors. As the name itself shows, sundry debtor would always have a debit balance. ये sundry debtor तो नाम ही वहीं से आया है कि पर्सनल अकाउंट जितने डेबिट बैलेंसेस थे उसकी हमने लिस्ट बना के उसका टोटल कर लिया, वो sundry debtor बन गए. तो ये सारे डेबिट बैलेंसेस हैं पर्सनल अकाउंट के. So sundry debtors would appear in the debit column के अंदर 1,20,000. Similarly, sundry creditors 1,50,000 would appear in the credit column because this has a credit balance. Miscellaneous expenses, अब ये specified नहीं है डेबिट या क्रेडिट है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस. So miscellaneous expenses is a debit balance which will come in the debit column. Plant and machinery 1,58,000, a real account. Plant and machinery अगर हमारे पास है, it would always have a debit balance, so it would be a debit balance 1,58,000. Discount received. Discount received is what? A gain or an income for us. Nominal account में gain or income means it is a credit balance. Discount allowed will have a debit balance. Discount received will have a credit balance. So discount received will appear in the credit column of the trial balance, rupees 5,400. Building account rupees 1,20,000, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा because it's a real account, so it will come on the debit side. 1,20,000 डेबिट साइड नहीं, डेबिट कॉलम के अंदर आएगा 1,20,000. Then we have rent received. अगर मैं रेंट पे करता हूँ तो एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है. ये रेंट रिसीव्ड है, so this is an income, nominal account. That means ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस. सो दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस. सो रेंट रिसीट मेरे क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर आएगा 1,80,000 रुपीज. नाउ वी कम टू इम्पॉर्टेंट वन. ये हमने वी हैड डिस्कस दैट इन 8C, वी हैड डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग. इनपुट IGST. इनपुट IGST का मतलब हो गया जब मैंने परचेज किया तो उस पर मुझे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है उसका, और उसकी अगर आप एंट्रीज देखोगे व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन सेशन 4 वाली जो सीरीज है 4ABCD, आप वो जाके देख लीजिए. सो इनपुट IGST will always have a debit balance. So input IGST 42,000 will be shown in the debit column. Input CGST will also have a debit balance. So 26,400 would appear in the debit side. Salaries and wages being an expense, again debit balance will appear in the debit column, 20,000 rupees. Cash account cannot have a credit balance. 4,45,600 would appear as a in the debit column. So cash account is debit balance. Capital account 8,98,000, ये क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल जो उसने प्रोप्राइटर ने इंट्रोड्यूस करी है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. सो 8,98,000 कैपिटल अकाउंट वुड बी देयर, इट विल कम इन द क्रेडिट कॉलम. परचेजेस डेबिट बैलेंस होता है बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. व्हेनेवर गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स आर डेबिटेड, सो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा. 7,90,000. सेल्स अकाउंट always will have a credit balance because the goods are going out, तभी मैं sales को credit करता हूँ. So sales account will have a credit balance, so it will come in the credit column. Input SGST. अब ये again you will have to see session 4. IGST is interstate GST, CGST is central GST, SGST is state GST. अब ये सबका input चाहे कोई भी head के अंदर हो, input GST जो है तीनों का will always be a debit balance, so it will come in the debit column, 26,400. Output IGST 60,000 rupees will be a credit balance. ये मैंने output GST means जब मैं सेल कर रहा हूँ तब मैंने चार्ज किया है. इसके एंट्रीज आप देखोगे तो output IGST will always have a credit balance, so this will come in the credit column. So मैंने जितनी आइटम्स थी 17 आइटम्स थी मेरे को जो दी गई थी,
उसको मैंने डेबिट और क्रेडिट में अपनी विजडम के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने उसको डिवाइड कर दिया. अब लेट मी ट्राई एंड टेक द टोटल. डू यू थिंक द ट्रायल शुड टैली? हो जाएगा टैली? चलिए कोशिश करते हैं. डेबिट साइड का जब हम टोटल करते हैं, वी फाइंड 17,93,400 एंड क्रेडिट साइड का टोटल इज ऑल्सो 17,93,400. दैट मीन्स हमने करेक्ट एनालिसिस करके इसका हमने ट्रायल बनाया है. सो 17,93,400 मेरा ट्रायल टैली हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो बी हैप्पी, यू ऑल्सो बी हैप्पी. जाइए, क्वेश्चन करिए, ट्रायल बनाइए, बैलेंस टैली हो जाए, यू विल फील हैप्पी. So enjoy yourself. Thank you. Thanks a lot. See you in the next session now. Okay, bye.